Sets worksheet. The first question is write down the elements of P union Q. That means combine P and Q. Combined elements of P and Q. Now what is P? P is multiples of 6 but inclusive of 10 and 40, but in between 10 and 40 and including 10 and 40. So 6 is a multiple of 6 but we would not include that. We're going to start from 12 because वो range के अंदर है. Then we've got 18, 24, 30 and 36. If I include 42, that's going to be outside this range once again, so we won't include that. Now what is Q made up of? Q is made up of square numbers. Now what are square numbers? Square numbers are numbers which when you multiply two same numbers and the number that you get as the answer is the square number. So 2 into 2 is 4, 4 is a square number, 1 is a square number, 3 into 3 is 9, that is also a square number. That's going to be included in square numbers. ये सब square numbers हैं and they go on and on. Now once again the square numbers should be between 10 and 40, so 4 is not included, 9 even is not included. The first square number that's going to be included is 16. So 16, 25, 36, these are only the square numbers that we can include. P union Q asks you to combine both the elements of both the sets of P and Q. जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको skip कर दें. We got 12, 16, 18. Let's cut them out so that we know what we're done with. 24 first, then 25, then we've got 30 and 36. अभी 36 भी 2 दफ़ा आया था तो उसको 1 दफ़ा लिखा है, ठीक है. I'm going to keep on checking our answers. Here we go. ये हमारा पहला आंसर है. Find the number. This is the number of elements in P complement intersection Q. P complement intersection Q. अब P complement पहले mention करते हैं यहाँ पे कि P complement क्या होगा. P complement is going to be all those numbers which are not inside P. So let me clear this out so that you can see. ये P है. अब इसके अंदर जो numbers नहीं है और universal set के अंदर हैं वो P complement होगा. So that's going to be a huge list of numbers. So for now let's just write everything except, ये आंसर का हिस्सा नहीं है, जस्ट उसको मेंशन करने के लिए so that you know what we're talking about. Everything except P, ठीक है. अब ये P complement हो गया. Where does this overlap? मेरे नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, intersection means overlap. Where does this overlap with Q? क्या चीज़ें इसके साथ Q के साथ कॉमन है? So we've got जो P में नहीं है वो क्या है 16, और P में क्या नहीं है 25, 36 तो P में था. So our only answers are going to be 16 and 25. So what do we have in P complement intersection Q? 16 and 25. If you're lost, I'll explain it in a little while. Now the question says इसके elements नहीं mention करने, the number. So how many elements are there in P complement intersection Q? We're only going to say 2, and that is our answer. Let me go back a little bit and retrack a bit. P क्या था? P में ये तमाम elements थे, ठीक है. Let me highlight it in a different color. P complement में क्या होगा? P complement यहाँ से आ रहा है, ठीक है. यार तमाम वो चीज़ें जो P में नहीं हैं बट इस रेंज के अंदर है. तो इफ़ आई स्टार्ट मैंशनिंग दैम दैट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से. P कॉम्प्लीमेंट में आएगा 10, 11 फिर 12 तो यहाँ है, उसको स्किप करेंगे. 13, 14, 15, 16, 17 फिर 18 यहाँ है, उसको स्किप करेंगे तो 19. तो दैट्स वाई यू डोंट एक्चुअली हैव टू राइट इट डाउन, बट इफ़ यू कैन विजुअलाइज इट ना कि इसमें क्या क्या है, दैट इज़ मोर देन इनफ. अब वो कह रहा है कि वेयर what numbers are in P complement and as well as Q complement as well as Q. तो देखो ये 16 है, आगे जाके 25 भी यहाँ पे आ जाना था. तो यही 16 और 25 हमने आंसर में लिख दिए हैं. अब उन्होंने पूछा था तादाद, तो that's just 2. Use set notation to describe the shaded region in the Venn diagram. Students usually get multiple answers for this, और multiple answers इसमें ठीक भी हैं. But for now let's take it along this path कि अगर आपको C और D दोनों shaded चाहिए, for now let's just for the sake of understanding you need this entire region shaded. What are you going to do?
यू गोइंग टू से सी यूनियन डी। अब आपको ये सारा पार्ट शेड हो गया, बट यू नो कि यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पार्ट, ये तो उसका हिस्सा नहीं है। तो हाउ विल यू रिमूव दिस, जो मैं आप इरेज कर रहा हूँ? यू गोइंग टू से ऑलराइट लेट्स स्टे आउटसाइड ऑफ बी। हाउ डू वी स्टे आउटसाइड ऑफ बी? यू गोना से intersection, sorry, we're going to discuss that afterwards. B complement, outside of B is B complement. C union D से सारा कुछ हाईलाइट हो गया था, सारा कुछ शेड हो गया था। कौन कौन सा पार्ट, आई एक्सप्लेन इट अगेन। C union D included both of these, ये भी और ये भी। नाउ वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पार्ट, ये और ये तो इंक्लूडेड नहीं है, तो B से बाहर रहना है। नाउ हाउ डू वी स्टे आउट ऑफ B? B complement। अब B complement मीन्स ये जगह, entire region which I've just shaded in red lines, ये जगह है B complement। Now how do I define this region? ये वाला पार्ट जो ब्लू के साथ भी है और ये रेड लाइंस भी हैं, but it does not include this. I'm gonna say intersection, where does it overlap with the red lines? So that's why we're going to include the intersection sign. ठीक है? C union D, once again I'll repeat, C union D gives us everything of C and everything of D, which included the blue part, सारा blue part जो X यहाँ पे लगे हैं वो भी। Now we need to get rid of that X as region. Why? Because if I erase this, you'll take a look over here. इसके नीचे तो white part था, तो we did not need this part. They asked us to define the shaded region. Set notation से shaded region define करें। So how do I get rid of this part that I'm erasing now? I'm gonna say let's try to stay outside of B. अब आउटसाइड ऑफ बी ऑल्सो इंक्लूड्स दिस पार्ट, ये जो रेड लाइन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, बट ये तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो सिर्फ ये जगह रीजन चाहिए। हम कहेंगे वो जो रेड लाइन्स जहाँ पे ओवरलैप कर रही है ना बी के वो ब्लू पार्ट के साथ, सिर्फ वो जगह चाहिए। तो यू विल एंड अप गेटिंग रिड ऑफ दीज एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट्स कैन रिमेन। लिटिल टू द राइट, होल्ड ऑन, आई विल शो यू। ये भी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज सिर्फ ओवरलैपिंग पार्ट होता है ना इंटरसेक्शन में, ये भी ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी लेफ्ट विद, और ये हमें रीजन चाहिए था। दैट्स गोना बी C यूनियन D इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। C यूनियन D इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। OE का मतलब है कि आपका कोई और आंसर भी होता है एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एंड अप विद द सेम शेडेड रीजन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन द स्टूडेंट्स यूजुअली फाइंड डिफिकल्ट। इन अ कॉलेज स्टूडेंट्स कैन स्टडी फ्रेंच, स्पेनिश एंड अरेबिक। A group of 25 students are asked which languages they study. Some of the results are shown in the Venn diagram. Now the question asks you, use information to complete the Venn diagram. So read this once, and I'll start explaining in a little while. Now, let's start off with the first statement, which says all students who study both Arabic and Spanish also study French. Let's try to break this down. All students who study Spanish and Arabic, वो ये रीजन है, ठीक है? कह रहे हैं अगर वो अरबिक और स्पेनिश पढ़ते हैं तो ये ऑरेंज रीजन हो गया। तो कहते हैं यकीनन वो फ्रेंच भी पढ़ते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सिर्फ स्पेनिश और अरबिक लेता हो। मतलब दो क्लब्स में जा रहा है, एक तो स्पेनिश की क्लास में आ जाता है, वहाँ से उठ के आता है, अरबिक की क्लास में जाता है, एंड दैट्स इट। नो, अगर स्पेनिश और अरबिक ले रहा है तो वो फ्रेंच सब्जेक्ट भी ले रहा है, तो यहाँ पे तो कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा स्पेनिश और अरबिक, प्योरली स्पेनिश और अरबिक में, बिकॉज whoever student is let's say taking two or selecting two languages is also selecting French. So over here we will be left with the value 0. I'll repeat in simpler terms, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो स्पेनिश और अरबिक ले रहा हो और फिर फ्रेंच ना ले रहा हो। तो अगर स्पेनिश और अरबिक ले रहा है, जो पहले मैंने ऑरेंज पार्ट पहले शेड किया था, वो फ्रेंच भी ले रहा है। इफ़ ही इज टेकिंग स्पेनिश एंड अरबिक, ही हैज़ टू बी इनसाइड द फ्रेंच सर्कल एज वेल, ही हैज़ टू बी इनसाइड द फ्रेंच सर्कल एज वेल, बिकॉज अगर उसने दो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, दो लैंग्वेजेस ली हुई हैं, वो फ्रेंच भी ले रहा है। आई मीन दैट्स हाउ दे डिफाइनिंग द डेटा, ये कोई रूल नहीं है। तो दैट मीन्स प्योरली स्पेनिश और अरबिक वाला जो ये कॉम्बो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स ले रहा हो, वो तीसरी लैंग्वेज भी ले रहा है। यहाँ 0 आ गया। नेक्स्ट, it says 7 students study French only. 7 students study French only. Now French का circle is pretty big. Let me erase this. French का circle goes from, अभी तक जाकर हमने 0 फिगर आउट कर लिया, वो लिख लेते हैं। French का circle is this. बस जब वो French only कह दे
बिकॉज यहाँ पे तो स्पेनिश और फ्रेंच इकट्ठा है, यहाँ पे फ्रेंच और अरबिक इकट्ठा है, यहाँ पे स्पेनिश फ्रेंच और अरबिक इकट्ठा है. व्हेन इट सेज फ्रेंच ओनली, ये रेफरिंग टू दिस पार्ट ओनली, और ये 7 है. 8 स्टूडेंट स्टडी अरबिक. नाउ इट डजंट से ओनली. अरबिक का मतलब है कि द स्टूडेंट एग्जिस्ट समवेयर इन दिस रीजन. इस एरिया वाला जो स्टूडेंट है ये 8 होने चाहिए टोटल. तो वी फिगर आउट एवरी अदर नंबर दैट देयर इज. वी गॉट 4, वी गॉट 1, वी गॉट 0. इन तीनों वैल्यूज़ को 8 से सब्ट्रैक्ट करो तो वी गेट लेफ्ट विद 5. ठीक है, 8 से 4 भी सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 भी और 0 भी, तो वी लेफ्ट विद 5. तो 5 यहाँ पे होंगे जो सिर्फ अरबिक ले रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन सेड 25 स्टूडेंट्स. आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू ऐड दिस अप इट डजंट ऐड अप टू 25. उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज वी स्टिल हैव टू फिगर समथिंग आउट. लेट्स ऐड दिस अप. 7 + 5 + 4 + 1, that comes out to be, and we got a 2 outside as well. Hold on. 7 + 4 + 1 + 5 + 2 + 0 + 5 + 2, 24, and we missed a 1 over here, I guess. 7, 4, 1, 5, 0, 5 and 2. So it doesn't add up yet, right? तो भी कुछ अभी मिसिंग है. What's missing? That's where you identify कि अच्छा यहाँ पे तो अभी कोई वैल्यू डाली नहीं है. Now how do you figure that out? What you're going to do is you're going to subtract all of these values from 25 and end up with the answer for this region. And what's that gonna be? That's gonna be 3. That's gonna be 3. We got 7, 0, 3. Hold on. We marked this wrong. Apologies for this. This is 3, not 5. This is 3. If I've confused you, I'll work this out. 8 students study Arabic. ये अरबिक वाले थे. इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से 0 भी सब्ट्रैक्ट कर लें, वे लेफ्ट विद 3. ये हो गया 3. ठीक है. नाउ 25 में से ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस टाइम अराउंड आई एम गोना राइट इट सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. 7 - 4 - 1 - 5 - 0 - 3 - 2, and we will be left with the answer 3. Now this 3 goes in this box over here, because at the end of the day the total number of students हैं वो कहीं ना कहीं वेन डायग्राम के अंदर मैंशन होनी चाहिए, और ऐड करके वही नंबर आना चाहिए जो ऊपर टोटल मैंशनड है, विच इज़ ओवर हियर, विच इज़ 25, राइट. नाउ इफ आई वर टू ऐड दीज अप, ये वाला वैल्यू और ये यहाँ पे भी 3 है, वो भी मैंशन कर देता हूँ. दीज ऑल ऑफ दीज वैल्यूज शुड ऐड अप टू 25. We've got question number 2. Question number 2 once again has its entire set, universal set है, इसमें P, Q और R है. And then we've got P union Q. P union Q के अंदर क्या क्या आएगा? We're gonna combine both the elements of P and Q. तो A है, ये रहा, A, E और I है, A, E, I. Then we got F, G, H, I and J. F, G, H, I and J. आप नोट करो कि इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है. इसमें रिपीट ये हो रहा है कि वीव गॉट आई ट्वाइस. आई को गेट रिड ऑफ आई एंड नाउ नथिंग इज रिपीटिंग. तो ए, आई, एफ, जी, एच एंड जे, दैट शुड बी द आंसर. हियर वी गो. क्वेश्चन नाउ सेज फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर. आप इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे कि इनर मोस्ट ब्रैकेट से सॉल्व करोगे, जिस तरह बोर्ड मैथ्स के लिए करते आए हैं. ठीक है, क्यू यूनियन आर पहले निकाल लें, क्यू और आर को कंबाइन कर लें. कंबाइन का क्या मतलब है कि जो चीज़ें इन दोनों में हैं वो इकट्ठी एक ही लाइन में लिख लें. तो वीव गॉट एफ, जी, एच, आई एंड जे. देन वीव गॉट सी, डी, ई, एफ एंड जी. अब इसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उसको कट आउट कर देते हैं. डू वी एफ एफ? येस वी डू. इसको रिमूव कर दें. डू वी हैव अ जी? येस वी हैव 2 G's, तो उसको भी रिमूव कर दिया. एफ, जी, एच, आई, जे, सी, डी, ई doesn't seem to be repeating now. We're going to close the brackets over here. Q union R, we're done with this part. It says where does this overlap? Intersection means overlap or is common with P complement. P complement पहले mention करना पड़ेगा क्या है. P complement is everything outside of P but in this universal set. तो A, E और I के अलावा ये सारी values P complement में आ जाएंगी. So we got B, C, D, F, G, H. B, C, D, F, G, H.
Now where do these two sets, which set P complement and Q union R, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? तो we're going to say जी इनमें कॉमन क्या क्या है? We have B नहीं, C yes, D yes, and F we have that as well, G yes and H as well. तो 5 ऐसे एलिमेंट्स कॉमन है. उन्होंने क्या कहा था? नंबर बताएं, तादाद. तो वी हैव, ओ इट सेज 6. डिड वी स्किप समथिंग? बी सी डी एफ जी एच. तो क्या क्यू यूनियन आर में बी था? नहीं, बी नहीं था. व्हाट नंबर आर वी मिसिंग आउट ऑन? पी कॉम्प्लीमेंट इज दिस वन. एम आई मिसिंग आउट समथिंग ओवर हेयर? येस आई एम. यहाँ पे जे भी था, जे भी था. ये देखो जे भी एंड पे है. सो नाउ वी हैव जी एज वेल, जी एज वेल. नाउ इट सेज 6. ठीक है, तो हमारे टोटल 6 नंबर, 6 ऐसी चीज़ें हैं. विल काउंट देम 1 2 3 4 5 एंड 6. सो पी कॉम्प्लीमेंट हैड दोज एलिमेंट्स विच आर अप हियर. क्यू यूनियन आर हैज दीज कॉम्प्लीमेंट्स. इन्होंने पहले कहा कि यार ओवरलैपिंग क्या है. ओवरलैपिंग क्वांटिटी नंबर हमने यहाँ लिख लिए, एलिमेंट्स यहाँ लिख लिए, उनकी तादाद काउंट करके बता दी, वो 6 थी, एंड दैट वाज आवर आंसर. पार्ट बी सेज यू सेट नोटेशन. सेट नोटेशन का क्या मतलब है? वो जो यूनियन लिखा होता है पी यूनियन का आर, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो यहाँ पे हमने ए बी सी के साथ ऐसा कुछ बनाना है कि सिर्फ ये शेडेड रीजन बच जाए. तो यू गोइंग टू से ऑल राइट, इफ़ यू नीड दिस रीजन, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट गेट दिस एंटायर रीजन ओवर हियर. हाउ विल वी गेट दैट? वी कैन से वी नीड ए इंटरसेक्शन सी. उससे क्या आया? ये भी सारा आ गया पार्ट और ये भी सारा पार्ट आ गया. नाउ वी नीड टू गेट रिड ऑफ व्हाट पार्ट? वॉच क्लोजली, आई एम गोना इरेज इट. ये पार्ट हमने रिमूव करना है. तो यू गोना से ओके इंटरसेक्शन नहीं, लेट्स राइट बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट. वाई? बिकॉज ये पार्ट जो भी रिमूव किया था इसका क्या मतलब था कि बी से बाहर हो. ठीक है, तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया. अब यार बी से बाहर रहते हो तो ये जगह भी इंक्लूड हो जाएगी, ये भी. ठीक है, और ये भी और ये भी और ये भी. तो आप कहोगे अच्छा से बी से बाहर रहते हुए, मैं वो बी से बाहर जो शेडिंग है ना उसको मैं डिफरेंट कलर में करने लगा. बी से बाहर रहते हुए वी गॉट दिस एंटायर रीजन. अब ये सारा तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या ऐसा नोटेशन यूज़ करेंगे? कौन सा यहाँ पे सिंबल आएगा इंटरसेक्शन का या यूनियन का? यूनियन कर देंगे तो हमारा वो जो पिंक पार्ट नीचे नज़र आ रहा है और जो ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है ये कंबाइन हो जाएगा, सारी एक शेडिंग बन जाएगी. क्या हमें इतनी शेडिंग चाहिए? नहीं, हमें तो सिर्फ कौन सी शेडिंग चाहिए? सिर्फ ये वाली जगह. हम कहेंगे जो जहाँ पे ब्लू पार्ट और पिंक पार्ट ओवरलैप कर रहा है, विच इज़ दिस रीजन ओनली. सिर्फ ये जगह चाहिए. ओवरलैप के लिए क्या सिंबल हमने सीखा हुआ है? इंटरसेक्शन. दिस इज़ आवर आंसर. अब सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग अ डिफरेंट आंसर फ्रॉम दिस, बट एग्जामिनर ने ये दिया और आगे ओ ई भी लिखा हुआ है. ओ ई का मतलब है कि आपका कोई और आंसर भी हो सकता है. एज लॉन्ग एज इट्स करेक्टली डिस्क्राइबिंग दिस, यू आर गुड टू गो. Now the question says, question number 3, 40 students take part in 3 activities. We got art, dancing and gardening. 5 do not take part in any of these activities. तो 5 यहाँ पे बाय यूनिवर्सल सेट में लिखा जाएगा क्योंकि ना वो ए में है, ना वो डी में है, ना वो जी में है. कोई किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेते. 12 do art only. आर्ट ओनली वाली जगह ये है, बिकॉज इफ़ आई mention this is art, dancing and gardening. This is art and dancing. This is art and gardening. तो आर्ट ओनली दैट मीन्स ये जगह. 4 do dancing and gardening but not art. dancing and gardening ये जगह, dancing and gardening. तो 4 do this but not art, मतलब वरना यहाँ पे भी आप फिट इन कर सकते. ये उन्होंने कहा आर्ट वाले सर्कल में नहीं जाना. वी डन विद दिस. 1 student does all 3 activities. ये वो जगह है जहाँ पे आर्ट भी है, डांसिंग भी है और गार्डनिंग भी है. यहाँ 1 लिख दिया. तो वी डन कंप्लीटिंग द वेन डायग्राम. दैट्स अ गुड 2 marks. On the Venn diagram, the ratio of x, y, z is 1, 2, 3. कौन सा x, y और z? ये x, ये y और ये z. अब ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 में से जो जो हमने फिगर आउट कर लिए हैं, लेट्स रिमूव दैट. 40 minus 5 minus 12 minus 1 minus 4, we end up with 18. अब 18 has to be divided in amongst x, y and z. अच्छा, किस रेशो में? क्या इक्वल डिवीजन है? नहीं. x को अगर एक हिस्सा मिलता है, y को 2 और z को 3. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6. हाउ डू आई नो दैट? आई एम एडिंग 3 and 2 and 1. वी आर सपोज टू डिवाइड 18. जो 18 क्या था? वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रह गए थे, इनटू 6 पार्ट्स. एवरी सिंगल पार्ट इज़ गोना बी ऑफ 3 स्टूडेंट्स ईच. एवरी सिंगल पार्ट.
तो इफ दिस रिप्रेजेंट्स दिस सिंगल पार्ट, दिस 1 रिप्रेजेंट्स 3, तो ये 2 इंटू 3 क्या होगा 6, और ये 3 इंटू 3 क्या होगा 9. द वैल्यूज ऑफ 3 x y z आर 3, 6 एंड 9. इफ दिस डजंट मेक सेंस, लेट मी स्टार्ट इन अनदर वे. इसी पार्ट को, ये 18 समझ आ गया था. आप बताओ कि 18 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो भी एक्स वाई और जी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में. अब इनकी डिवीजन किस तरह है 1, 2 एंड 3. क्या ये नंबर्स ऐड होकर 18 बनते हैं? नो, दे हार्डली मेक अप 6. तो इसको हम क्या कर लेते हैं, टाइम्स 2 कर लेते हैं सारी रेशो को. ये 4 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 6. क्या ये नंबर्स ऐड होकर 18 बनते हैं? स्टिल नॉट देयर. टाइम्स 3 वी गेट 3, 6 एंड 9. किससे मल्टीप्लाई करूँ? ओरिजिनल वैल्यू को अब 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 बन गया, 2 इंटू 3 6 बन गया, 3 इंटू 3 9 बन गया. डू दीज नंबर्स ऐड अप टू 18? येस दे डू. दैट्स अनदर वे यू कैन गेट 3, 6 एंड 9. On one subset in the Venn diagram in part A has no students. Use set notation to describe that. वो कौन सी जगह है जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है? ये वाला. इसको सेट नोटेशन में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? वी डन दिस क्वेश्चन अ कपल ऑफ टाइम्स. प्रीवियस क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन किया. तो पहले आप कहते हो जी मैं इस पूरे को डिस्क्राइब कर लेता हूँ. दिस पूरा रीजन इज़ गोना बी ए इंटरसेक्शन जी. वंस अगेन आई विल मार्क इट अगेन, वॉच क्लोजली. ए इंटरसेक्शन जी ये होगा. हमें इसमें ये 1 वाला रीजन तो नहीं चाहिए ना, तो मतलब डी से बाहर रहना है, डी वाले सर्कल से. ए इंटरसेक्शन जी में तो सारा आ गया था. अब डी से बाहर रहने के लिए, तो यार डी में से बाहर रहने के लिए ये जगह भी है. चलो लेट मी चूज अनदर कलर. ये जगह भी है, ये जगह भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. बट हमें सिर्फ कौन सा चाहिए? सिर्फ ये जगह. तो आपने कहना है डी से बाहर रहते हुए, वॉच क्लोजली, डी से बाहर किस तरह रहते हैं? डी कॉम्प्लीमेंट. डी से बाहर रहते हुए सिर्फ वो जगह चूज़ कर लो जो ओवरलैप करिए ये येलो के साथ जो ओवरलैप कर रही है. ठीक है, तो येलो के साथ कौन सी ओवरलैप कर रही है? इंटरसेक्शन से आएगी. ब्लू पार्ट इज डी कॉम्प्लीमेंट, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ डी. वेयर डज दैट ओवरलैप विद द पार्ट दैट वी नीड विच इज़ येलो? ये वाली जगह इंटरसेक्शन. ओवरलैपिंग मीन्स इंटरसेक्शन. अगर मैं यहाँ यूनियन का सिंबल डाल दूँ, और से देखना यूनियन, तो वो तो ये तमाम जगह जो येलो भी है और जो ब्लू भी है वो सारी कंबाइन हो जाएगी. ठीक है, वो सारी कंबाइन हो जाएगी. इनफैक्ट उसके अंदर ए यूनियन जी में तो ये जगह भी आ जाएगी. तो एक सिंबल चेंज करने से, इंटरसेक्शन से, अब हमारे पास कौन सी जगह रह जाती है? ये येलो वाली. और येलो का ही हमें उसने आंसर पूछा था कि वो जगह बताएं जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है. तो भाई जीरो वाली जगह जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है वो इस तरीके से आएगी. ए यूनियन जी वुड हैव गिवन अस, आई विल रिपीट इट वंस अगेन क्विकली. ए यूनियन जी वुड हैव गिवन अस दिस एंटायर रीजन. डी से बाहर रहना है तो डी कॉम्प्लीमेंट. अब डी कॉम्प्लीमेंट में तो यूनिवर्सल सेट की रीजन भी आ गए, दूसरे सर्कल्स भी आ गए. नहीं, वो नहीं चाहिए. तो सिर्फ वो पार्ट जो ओवरलैप कर रही है. ओवरलैप का सिंबल क्या है? इंटरसेक्शन. ओवरलैप किसके साथ करती है? येलो पार्ट के साथ. तो जस्ट दिस वेयर वी रिमूव द ऑरेंज पार्ट. ठीक है, तो वी जस्ट लेफ्ट विद येलो. द क्वेश्चन नाउ सेज फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए. अब डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए, डी यूनियन जी तो हो गया ये सारा, ये सारा, ये और सारा ये. वेयर डज दिस ओवरलैप विद ए? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ओवरलैप. ये जगह है, इनकी वैल्यूज़ ऐड कर लो. ये एक्स कितना था? 3, अभी तो निकाला था. 3 + 1 + 0 गिव्स अस 4. 4 इसका आंसर है. नाउ स्टूडेंट्स आर यूजुअली वंडरिंग कि सर आपने ऐड क्यों कर दिया? 3 और 1 जो है, ये 3 एक वैल्यू थी, 1 एक वैल्यू थी, तो आंसर 2 होना चाहिए. दैट इज़ वेयर यू हैव टू गो बैक एंड रीड द स्टेटमेंट कि ये 40 क्या है. क्या ये 40 उसी तरह है नंबर्स हैं जिस तरह कि प्लेयर की, फुटबॉल प्लेयर की शर्ट पे लिखा होता है कि नंबर 7 प्लेयर है, नंबर 12 प्लेयर है? क्या ये एक बंदे को डिनोट कर रहा है? क्या ये एक आइटम, एक आर्टिकल को बता रहा है? यहाँ ये 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 डिफरेंट लोग हैं. तो फॉर इंस्टेंस ये जो 12 है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऑरेंज में, क्या ये एक बंदे की वैल्यू बता रहे हैं? यार जिस 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसका नंबर है, तो 7 नंबर है जी, रिफर्स टू जस्ट 1 पर्सन. नहीं, ये अगर यहाँ पे 7 है तो 7 डिफरेंट लोग हैं. 12 है तो 12 पीपल हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं. क्वांटिटी जब भी हो आपने इसको ऐड करना होता है. तो वी हैव डन 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. 4 और ऑनवर्ड्स एक और वीडियो में करेंगे, सो दैट द वीडियो डजंट बिकम वेरी लेंथी. इफ़ यू नीड सॉल्यूशंस टू क्वेश्चंस 4 एंड ऑनवर्ड्स, वॉच द नेक्स्ट वीडियो in this playlist.